Content analysis. Today we are going to discuss about another research approach, and that is content analysis. Content analysis, what is content analysis, what are the basic aim of this study, what is content, what is analysis, and then content analysis technique, its process, its limitation, its strength, and why we do content analysis. So all these things we discussed today. So we are going to cover another research approach, and that is content analysis. So first is, what is content? What is content? The content that is analyzed can be in any form to begin with, but it is often converted into written words before it is analyzed. So the original source can be printed publications, broadcast programs, other recordings, the internet, the live situations. So all this content is something that people have created, and you can't do content analysis of say the weather, but if somebody write the report predicting the weather, you can do a content analysis of that. So what is content? कंटेंट है क्या? फिर हम बात करते हैं एनालिसिस की. कंटेंट क्या है? कंटेंट वो ह्यूमन कम्युनिकेशन का हिस्सा है. वो बात है, वो टेक्स्ट है, वो वीडियो है, वो रिकॉर्डिंग है, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वो वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो टेक्स्ट है न्यूज़पेपर के ऊपर, या वो किसी प्रोग्राम के अंदर डायलॉग्स हैं. वो तमाम चीज़ें कंटेंट हैं. ठीक है, लेकिन वो कंटेंट तब बनता है जब उसको किसी रिटन फॉर्म में लेके आया जाए. जब आपने मुझसे कोई बात की लेकिन वो कंटेंट नहीं है, अब वो अगर रिटन फॉर्म में आ गई है तो वो कंटेंट है. अगर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आ गई है तो वो कंटेंट है. अगर आपकी वीडियो उसके ऊपर बन चुकी हुई है तो वो कंटेंट है. तो कंटेंट क्या है? रिकॉर्डेड ह्यूमन कम्युनिकेशन. यहाँ तक ये चीज़ है बताने का मकसद कि कंटेंट क्या है? रिकॉर्डेड human communication in terms of text, in terms of picture, in terms of messages, in terms of sound. So all these are content. So but as we see, weather is not content, but if we write word weather on our page, this is a content. So all this is a content. Next, content analysis. Analysis of the content is of communication. Basically content analysis क्या है कि उस content को analyze करना. ठीक है, तो techniques that allow us to study human behavior indirectly through analyzing communication. Textbook, newspaper, essays, magazines, articles, cookbook, songs, political speeches, novel, advertisement, and the picture. Content analysis basically क्या है? Content analysis is basically unobtrusive research. What is unobtrusive research? Content analysis is basically linked with the process of conducting content, is not interacting with the humans directly, as we interact in survey research, as we interact with experimental research, as we interact with qualitative research. But content analysis is both qualitative and quantitative. हम quantity को भी content analysis में देख रहे होते हैं कि किस न्यूज़पेपर ने कितनी न्यूज़ कवरेज दी है किसी इवेंट को. ठीक है, या हम क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड कर रहे होते हैं कि ये जो लफ्ज़ था इसको किस तरीके से लोगों ने परसीव किया. सो बोथ कंटेंट एनालिसिस क्वालिटेटिव भी है और कंटेंट एनालिसिस क्वांटिटेटिव भी है. बट बेसिकली है क्या? अनऑब्स्ट्रूसिव रिसर्च है. वो कौन सी होती है? जिसमें हमने डायरेक्टली ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट नहीं करना होता, उनकी रिकॉर्डेड कम्युनिकेशन के ऊपर हमने जो है वो एनालिसिस करना होता है. ठीक है. Content. Print media. In print media, content is in the form of newspaper items, magazine articles, books, catalog. हम प्रिंट मीडिया में कौन सा कंटेंट देख रहे होते हैं? हम देख रहे होते हैं कि द न्यूज़ ने अपोजिशन के बारे में 2018 के इलेक्शन में अपोजिशन के बारे में कितने % स्टोरीज दी.
ठीक है, वो कंटेंट है, वो कंटेंट एनालिसिस है। फिर मैगज़ीन के अंदर जो आर्टिकल आया था, कौन सा मैगज़ीन रेगुलरली, वीकली, बायएनुअली किस तरह से उस इशू को प्रेजेंट कर रहा है। बुक्स की बात करते हैं तो हम बुक का रिव्यू कर रहे होते हैं जी, फ़लाँ बुक के अंदर इस चीज़ को इतनी दफ़ा इस तरह से एक्सप्लेन किया गया, ये प्रिंट मीडिया का कंटेंट है। अदर राइटिंग्स लाइक वेब पेजेस कंटेंट हम देख रहे होते हैं, एडवर्टाइजमेंट देख रहे होते हैं, बिलबोर्ड देख रहे होते हैं, पोस्टर्स, ग्राफिटी एक्सेट्रा। ब्रॉडकास्ट मीडिया की बात करें, रेडियो प्रोग्राम्स, न्यूज़ आइटम्स, टेलीविजन प्रोग्राम्स, other recordings like photos, drawings, videos, films, music, live station, speeches, interviews, plays, concerts. So observation क्या है कि gestures हम अगर हम record करें, rooms, products in shops. So all these are the content in terms of content analysis. So media content and audience content. दो तरह के कंटेंट होते हैं. That's one way of looking at content. Another way is to divide content into two types: media content and audience content. Just about everything in above list is media content. जितनी बातें मैंने की, ये तमाम की तमाम चीज़ें मीडिया कंटेंट है, मीडिया के ऊपर आने वाली चीज़ें हैं. ठीक है, ये क्या है? रेडियो प्रोग्राम्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, ड्राइंग्स हैं, वीडियोज़ हैं, फिल्म्स हैं, कमर्शियल्स हैं, ठीक है, डायलॉग्स हैं किसी के, ये तमाम चीज़ें क्या है हमारे पास? मीडिया कंटेंट है. फिर हम बात करते हैं ऑडियंस कंटेंट की. अब ऑडियंस कंटेंट क्या है? जस्ट अबाउट एवरीथिंग इज अबाउट इज अ मीडिया कंटेंट, बट व्हेन यू गेट फीडबैक फ्रॉम दैट ऑडियंस मेंबर, दैट्स द ऑडियंस कंटेंट. दो तरह के कंटेंट की मैं बात कर रही हूँ. एक मैं कह रही हूँ मीडिया का कंटेंट होता है और एक होता है ऑडियंस कंटेंट. मीडिया कंटेंट क्या है कि न्यूज़पेपर ने किसी स्टोरी को किस तरह से पब्लिश किया, किसी इवेंट को, किसी इन्फॉर्मेशन को किस तरह से उसने कवरेज दी. ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया? ऑडियंस कंटेंट. फीडबैक किस फॉर्म में है? वो किसी प्रोग्राम के बारे में अपना ओपिनियन जो है वो शो कर रही है. ठीक है, और मे बी ईदर प्राइवेट और पब्लिक. Private audience content include different type of things like public audience contents come from the communication between all audience members, such as letter to editor. Respond किया ना उसने न्यूज़पेपर में एक स्टोरी पढ़ी, ठीक है, पर्सन ने पढ़ी, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी, सोसाइटी में उस न्यूज़ स्टोरी की बात हुई और लोगों ने क्या किया कि उसका रिस्पॉन्स जो है वो एडिटर को देना चाहा, लेटर्स टू एडिटर. फिर हम बात करते हैं पोस्टिंग टू एन ऑनलाइन डिस्कशन फोरम. हमने न्यूज़ देखी, टेलीविज़न के ऊपर किसी तरह की न्यूज़ देखी और फिर हमने अपने रिमार्क्स अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पे लगा दिए, ब्लॉग लिखना शुरू कर दिए. वो भी एक फीडबैक है किसी चीज़ का, वो ऑडियंस कंटेंट होता है. फिर हम देखते हैं लिसनर रिस्पॉन्सेज इज टॉक बैक टू रेडियो. हम कॉल करके बता रहे होते हैं रेडियो स्टेशन पे, हमने जो है वो आपका प्रोग्राम सुनना है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये. तो ये जो चीज़ें हैं ना, जब फीडबैक होता है लोगों की तरफ से तो वो ऑडियंस कंटेंट होता है, और जब मीडिया किसी चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है तो वो मीडिया कंटेंट होता है. हम कंटेंट एनालिसिस करते क्यों हैं? For a media organization, the main purpose of content analysis is to evaluate and improve its programming. ठीक है, वो रेटिंग चेक कर रहे होते हैं अपने शोज़ की और उसके बाद वो एक प्रॉपर कंटेंट एनालिसिस जो है वो उनकी रिसर्च टीम जो है वो कंटेंट को एनालाइज कर रही होती है कि इस प्रोग्राम के ऊपर इतनी रेटिंग किस वजह से आई है, किस वजह से कम आई है, ज़्यादा है तो किस वजह से है. सो एवेलुएट कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम्स को. All media organizations are trying to achieve some purpose. For commercial media, purpose is to simply make money and survive. ठीक है, जो ऑलमोस्ट सभी मीडिया जो है वो कमर्शियल है और उनका मकसद भी यही होता है कि वो मेक मनी एंड सर्वाइव. फॉर पब्लिक एंड कम्युनिटी ऑन मीडिया की बात करें तो देर आर यूजली सेवरल पर्पज, समटाइम कॉन्फ्लिक्टिंग, समटाइम एजुकेटिंग एंड समटाइम फॉर एंटरटेनिंग, बट वो भी किसी न किसी इंसेंटिव पे चल रहे होते हैं. ठीक है, सो बेसिक मकसद क्या है कि उन्होंने लोगों के अंदर अपने मीडिया की जो अपना मीडिया हाउसेस हैं उनकी इम्पोर्टेंस को चेक करना होता है. मीडिया हाउसेस इसलिए कंटेंट एनालिसिस कर रहे होते हैं. As a simple commercial example, the purpose of advertisement is to promote the use of product in advertising.
first by increasing awareness, then by increasing sale. The purpose of documentary on AIDS in Southern Africa might be increase awareness of ways of preventing AIDS and to reduce the level of AIDS. Often, as example has shown, there is not a single purpose but a chain of them, with each step leading to next. कंटेंट एनालिसिस क्यों किया जाता है? एक हमने रिसर्च जब हम स्टार्ट कर रहे थे रिसर्च को, हमने देखा था एक पब्लिक सेक्टर रिसर्च होती है, एक प्राइवेट सेक्टर रिसर्च होती है। पब्लिक सेक्टर रिसर्च कौन सी होती है? जो हम लोग कर रहे होते हैं। हमारा मकसद क्या है? किसी इशू को समझना, अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों के अंदर जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करना, ये हमारे पर्पसेस होते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड मार्केटिंग लेवल पे बात करें तो मार्केटिंग रिसर्च का मकसद ही मेक मनी होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट किसी एड एजेंसी ने एडवर्टाइजमेंट दी है, ठीक है, एक ऐड बना है, उसने क्या किया, जब हम मैन्युफैक्चरर की बात करते हैं, उसने एक प्रोडक्ट अपना बनाया, उसने ऐड एजेंसी को वो प्रोडक्ट दिया, ठीक है। अब ऐड एजेंसी का काम क्या था? रिसर्च करना। रिसर्च उसने किस पे की? जो ऑलरेडी मिलते जुलते जो प्रोडक्ट थे वहाँ पे मार्केट के अंदर मौजूद थे, उसने क्या करना था कि उन प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करनी थी कि लोग किस तरह से ख़रीद रहे हैं, कौन से मीडिया से उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। फिर उसने अपना प्रोडक्ट प्लेस किया। जब ये कर चुका, फिर उसने करने के बाद लोगों तक प्रोडक्ट पहुंच गया। अब उस कंपनी ने ये कहना है कि वैल्यूएशन करे कि किस हद तक लोग जो हैं वो प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं, या वो एग्री हैं कि ये प्रोडक्ट ये काम करता है। वो क्या करेगा? मीडिया हाउस अगेन या एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है वो उसकी कंटेंट एनालिसिस करेगी कि इस तरह से ये जो है वो एडवर्टाइजमेंट फलां मीडिया के ऊपर आई थी, इतने पर्पस इतने टाइम के लिए आई थी, कौन से वो प्राइम टाइम के अंदर आ रही थी, तो इसलिए लोग जो है उसको ज़्यादा देख रहे थे, कौन सा रीज़न था। तो ये तमाम चीज़ें मीडिया हाउसेस में हो रही होती हैं और ये कंटेंट जो है वो बेसिकली एनालाइज हो रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोल्स की। अगर हम मैं सम अप करना चाहूँ तो किस वजह से कंटेंट एनालिसिस हो रहा होता है? टू रिड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड कंटेंट। कि हमारे पास सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर के ऊपर बात आती है कि अगर हम रीज़न कंटेंट एनालिसिस की करना चाहें तो रीज़न यही है कि रिड्यूस कर देता है लार्ज अमाउंट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड कंटेंट टू आइडेंटिफाई इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। यानी कंटेंट की बात की तो उसके स्ट्रक्चर के ऊपर बात होगी कि किस तरह का स्ट्रक्चर है, उसके बाद इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन से हैं, हमने किसी चीज़ के जो न्यूज़ स्टोरी के अंदर मौजूद है उसका हमने मेन थीम लोगों को बताना है कि किस तरह से ये न्यूज़ स्टोरी बताई गई, इसका मेन मकसद क्या था। सपोर्ट सम ऑफ द आर्गूमेंट, यानी जो हिडन फैक्ट्स एंड फिगर हैं उनको देखने के लिए भी हो रहा होता है, ठीक है। एग्जामिन ट्रेंड्स इन रिलेशनशिप विद द टेक्स्ट एंड मल्टीमीडिया प्रोड्यूस आर यूज इन द फील्ड context to provide insight to it, identify intention, focus group communication tend to individual, group or institutions, to describe attitudinal and behavioral responses to communication, to determine psychological and emotional state of person or group। ये तमाम चीज़ें हमारे पास गोल्स की फॉर्म में आ जाते हैं। बट द बेसिक थीम इज़, बेसिक हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि कंटेंट एनालिसिस है क्या था। अब यहाँ पे इस टर्म को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इसकी जो है वो इन डेप्थ जो है वो डीप हम अंडरस्टैंडिंग लेने की ज़रूरत है। तो हमने कहा कि कंटेंट एनालिसिस बेसिकली क्या है। Content analysis is basically the study of recorded human communication, ठीक है। recorded human communication होगी यानी वो किसी न किसी मीडिया में मौजूद होगी, किसी न किसी फॉर्म में हमारे पास मौजूद होगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कंटेंट एनालिसिस की बात करें तो हमारे पास कंटेंट एनालिसिस जो है वो बेसिकली दो तरह का होता है, ठीक है। जो कंटेंट होता है वो बेसिकली हमने कहा 2 टाइप्स होते हैं इसके कंटेंट के। फर्स्ट हम ये बात करते हैं कि हमारे पास जो कंटेंट होता है, एक होता है ऑब्जर्वेबल कंटेंट, ठीक है, ऑब्जर्वेबल कंटेंट होता है, और एक हमारे पास जो कंटेंट होता है उसको हम कहेंगे कि वो लेटेंट कंटेंट है, ठीक है। अब ऑब्जर्वेबल कंटेंट क्या है और लेटेंट कंटेंट क्या है? ऑब्जर्वेबल कंटेंट क्या है कि जो एक्चुअली हम लोग देख रहे होते हैं, ठीक है। किसी बुक में फॉर एग्जांपल ये आपको स्लाइड नज़र आ रही है, ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो ये ऑब्जर्वेबल कंटेंट है।
दूसरा अगर मैं बात करूं तो हमारे पास लेटेंट कंटेंट है। फॉर एग्जांपल आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है कि ये एक ऑब्जर्वेबल कंटेंट है आपके सामने, जिसमें आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और इन तमाम चीज़ों को रिकॉर्डेड फॉर्म में, ह्यूमन कम्युनिकेशन के फॉर्म में देख रहे हैं, तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेबल कंटेंट आएगा। ठीक है, जो आप सी, हेयर और एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है, ये हमारे पास आ गया ऑब्जर्वेबल कंटेंट। फिर हमारे पास होता है दूसरा जो फॉर्म होती है कंटेंट की, वो होती है लेटेंट। अब लेटेंट कम्युनिकेशन कौन सी होगी? लेटेंट जो कंटेंट होगा वो कौन सा होगा? लेटेंट कंटेंट इज़ बेसिकली अंडरलाइंग मीनिंग। ठीक है, अंडरलाइन मीनिंग अब कैसे होंगे जी? अंडरलाइन मीनिंग का मतलब ये है कि हमने उस वर्ड को पढ़ना है और उसका मतलब समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, मतलब हमने वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही, हमने राइटर की तहरीर को पढ़ लिया और फिर उसके मकसद को जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे पास होता है लेटेंट कंटेंट। यहाँ पे हमने दो चीज़ें मेंशन की हैं कि कंटेंट की कैटेगरीज़ की बात मैंने की कि कंटेंट बेसिकली क्या होता है। कंटेंट दो तरह का होता है, एक होता है ऑब्जर्वेबल कंटेंट, एक होता है लेटेंट कंटेंट। तो जब मैं बात करूँ कंटेंट एनालिसिस की, तो इन दोनों पे हम जो है वो रिसर्च करते हैं, तो हमारे पास कंटेंट एनालिसिस हो रहा होता है। ठीक है, कंटेंट एनालिसिस में हम ऑब्जर्वेबल कंटेंट के ऊपर भी रिसर्च कर सकते हैं और लेटेंट कंटेंट के ऊपर भी रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कंटेंट की, अगेन हम बात करें कंटेंट की, हम इसके पर्पस की तरफ जाएं या हम ये बात करें कि इसका जो प्रोसेस है वो कैसा होता है, तो उसके लिए हमें प्रॉपर सीक्वेंस हम देखते हैं। जो प्रोसेस ऑफ कंटेंट क्या है कि 6 क्वेश्चन मस्ट बी एड्रेस्ड इन एवरी कंटेंट एनालिसिस। हमारे पास ये 6 क्वेश्चन जो हैं वो एड्रेस होने चाहिए जब भी हम कंटेंट एनालिसिस करें। फर्स्ट क्या है हमारे पास कंटेंट एनालिसिस में? द फर्स्ट थिंग इज़ कि विच डेटा आर एनालाइज, कौन सा डेटा हमने एनालाइज करना है। विच आर देन डिफाइन, इसको हमने डिफाइन करना है। व्हाट आर यूजेस फ्रॉम विच आर ड्रॉन, what is the context relative to which the data are analyzed, and what are the boundaries of analysis, what are the target of inferences। यानी ये तमाम चीज़ें हमने मद्देनज़र रखनी है। ठीक है, फिर बात आती है वाई यूज़ कंटेंट एनालिसिस, हम क्यों कर रहे हैं। हमने कहा कि ड्यू टू फैक्ट दैट कैन बी अप्लाइड टू एग्जामिन एनी फीस ऑफ राइटिंग और अकरेंस ऑफ रिकॉर्डेड कम्युनिकेशन। हम उसको क्या करना चाह रहे हैं? हम एग्जामिन करना चाह रहे हैं किस चीज़ को? रिकॉर्डेड कम्युनिकेशन को। ठीक है, किसको हम जो है वो एग्जामिन करना चाह रहे हैं? रिकॉर्डेड कम्युनिकेशन को। Content analysis is used in the large number of fields ranging from marketing and media study to literature, rhetoric, information studies, सोशियोलॉजी में यूज़ की जा रही है, पॉलिटिकल साइंस में, साइकोलॉजी में, तो तमाम फील्ड ऑफ स्टडी में ये यूज़ की जा रही है। बेसिक क्या मकसद होता है? एग्जामिन करना है हमने उस कंटेंट को डिफरेंट पर्पसेस के लिए, एग्जामिन करना है ह्यूमन कम्युनिकेशन को डिफरेंट पर्पसेस के लिए। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हम कंटेंट एनालिसिस में देख रहे होते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके कंटेंट एनालिसिस के प्रोसेस की तरफ। उसके अंदर क्या हम देख रहे हैं कि कंटेंट एनालिसिस का प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, कंटेंट एनालिसिस जो है वो हम स्टार्ट लेंगे एग्जिस्टिंग थ्योरी के ऊपर। ठीक है, जो ऑलरेडी अवेलेबल है। कंसेप्चुलाइजेशन एंड हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, सैम्पलिंग एंड यूटिलाइजेशन, कोडिंग स्कीम डेवलपमेंट, डेटा कलेक्शन, कोडिंग, रिलायबिलिटी, टेस्टिंग एंड एनालिसिस। अब यहाँ पे एक चीज़ को, एक इवेंट को समझने की ज़रूरत है। प्रोसेस इस तरीके से मैंने बता दिया आपको, लेकिन अब हम इसको एक्सप्लेन अगर मैं करना चाहूँ तो मैं इस तरह से करूँगी कि हमारे पास जो कंटेंट एनालिसिस होता है उसको अगर मैं ये कहूँ कि हमने सबसे पहले देखना क्या है, तो हमने सबसे पहले जो कंटेंट एनालिसिस होगा उसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ होगी, हमने सपोज़ एक कंटेंट एनालिसिस करना चाहते हैं। लेट्स टॉक अबाउट प्रोसेस ऑफ कंटेंट एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ, हम किसी टेलीविज़न शो के ऊपर हम देखना चाह रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ड्रामा का नाम ले लें, किसी मूवी का नाम ले लें, या बच्चों का किसी का चिल्ड्रन प्रोग्राम के अंदर मैं ये देखना चाह रही हूँ कि चिल्ड्रन प्रोग्राम के अंदर एक जो फूड की फॉर एग्ज़ाम्पल फास्ट फूड है,
फास्ट फूड की कमर्शियल जो है वो किस हद तक जो है वो आई है या कितनी बार आई है, उसके बारे में जो है वो करना चाह रही हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ फूड या किस तरह का फूड जो है वो बच्चों के प्रोग्राम में जो है वो बच्चों के प्रोग्राम के अंदर जो कमर्शियल है उस किस तरह के फूड के कमर्शियल जो है वो लोग दे रहे होते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बात करूंगी कि कमर्शियल के अंदर वो जो प्रोग्राम था उसकी बात करते हैं कि किस तरह का प्रोग्राम था। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, रिसर्च क्वेश्चन होना चाहिए हमारे पास। अब रिसर्च क्वेश्चन क्या है कि किस तरह का उस प्रोग्राम के अंदर बच्चों का जो फूड था वो फूड आइटम कौन सा था और किस हद तक लोग जो हैं उसको कंज्यूम करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना होगा कि वो जो प्रोग्राम है वो किस टाइम पे आ रहा है, किस चैनल पे आ रहा है, और उसके अंदर हमने वो तमाम जो वेरिएबल्स हैं उनको ऑपरेशनलाइज करना होगा। ऑपरेशनलाइज का मतलब ये है कि हमने फूड की डेफिनेशन देनी होगी, प्रोग्राम के बारे में बताना होगा और कमर्शियल के बारे में बताना होगा, टाइम ड्यूरेशन के बारे में बताना होगा। स्टार्ट हम करेंगे रिसर्च क्वेश्चन से और हाइपोथेसिस से। ठीक है, फिर हमने कहा डिफाइन द पॉपुलेशन और सैंपल की बात की, तो हम ये पता होना चाहिए कि ये फ़लाँ टेलीविज़न के ऊपर आया, इस टाइम से इस दौरान आया, ठीक है, इतनी मरतबा आया, तो ये तमाम चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। फिर यूनिट ऑफ एनालिसिस, हम क्या देख रहे हैं, हम फूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये यूनिट ऑफ एनालिसिस है कि हमने क्या करना है, इस चीज़ को देखना है। फिर हम ये बात करेंगे, इसको ऑपरेशनलाइज करेंगे कि वो फास्ट फूड था, स्ट्रीट पे फूड था, या वो किस तरह का फूड था, वो कोई एनर्जी ड्रिंक था या वो मिल्क की बात थी, किस तरह से प्रेजेंट की गई, ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद हम इसके बारे में एक कोड शीट बना लेंगे। कोड शीट में क्या होगा कि उसके अंदर मेंशन होगा कि हमने ये स्टडी करनी है मंथली, हम 1 मंथ तक जो है वो उस कमर्शियल उस प्रोग्राम के जो रिकॉर्डिंग है वो देखेंगे। और हमने देखा कि दिसंबर 19 से हम बात करें या दिसंबर 2000 बात करें 2012 की, 2012 से लेकर 2015 तक का डेटा हमें ये सजेस्ट कर रहा है। तो हमने एक टाइम ड्यूरेशन जो है वो सिलेक्ट करना होता है कि इस टाइम से इस टाइम तक हमने ये प्रोग्राम देखा और इसके अंदर इतनी दफ़ा ये कमर्शियल आया और इसका मकसद ये था। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें करने के बाद हमने एक क्वांटिफिकेशन सिस्टम बनाया, हमने रिकॉर्डिंग की जी, डेली बेसिस पे हमने उसको देखा, उसको समझा और उसको जो है वो रिकॉर्डेड। जो क्वांटिफिकेशन की बात की जाए तो हमने फ्रीक्वेंसी मेंशन की। ठीक है, फिर ट्रेन कोडेड एंड पायलट स्टडी, पहले हमने क्या किया, 1 मंथ तक देखा, उसकी स्टडी जो है वो देखी हमने किस हद तक हम लोग चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर जितना टाइम ड्यूरेशन हमने सेलेक्ट किया हुआ था उतने टाइम के लिए हमने, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि 3 इयर्स की बात करते हैं, 3 इयर्स में बच्चों के प्रोग्राम के अंदर कौन सा फूड जो है प्रेजेंट हो रहा है, या मॉर्निंग शोज़ में कौन सा हो रहा है, या प्राइम टाइम में। ये एक प्रॉपर स्पेसिफिक टेक्निक है जिसके थ्रू हम ये तमाम के तमाम सैम्पलिंग करते हैं। फिर ये करने के बाद हमने उस जो डेटा हमने कलेक्ट किया कि इतने % जो है वो ये कमर्शियल आई और इसने इतने % ये वाला फूड जो है वो प्रेजेंट किया, तो उसके बाद हम उसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद हम रिज़ल्ट मेंशन करेंगे। तो बेसिकली ये होता है कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कंटेंट एनालिसिस, जो कि हमने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर किया। ठीक है, किसी भी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, किसी कमर्शियल के ऊपर किया। एडवांटेजेस क्या हैं कंटेंट एनालिसिस की? Content analysis offers several advantages to researchers who consider using it. In particular, content analysis look directly at communication via text, transcript and hence get the central aspect of social interaction. हम डायरेक्टली किसी फिगर को देख के उसके बारे में जो है वो अपनी एनालिसिस दे रहे होते हैं। डायरेक्टली किसी जो कंटेंट जो है वो टेक्स्ट मैसेजेस की फॉर्म में है, किसी भी फॉर्म में, उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व करके हम जो है वो उसके बारे में लिख सकते हैं। कैन अलाउ फॉर बोथ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ऑपरेशन। मैंने पहले कहा था कि क्वालिटेटिव भी हम इसको ले सकते हैं और क्वांटिटेटिव भी ले सकते हैं, यानी हम जस्ट उस कंटेंट की जो है वो क्वांटिटी चेक करेंगे कि कितने % जो है वो ये कमर्शियल आई, या कितने % जो है वो ये टाइम ले रही है, कितनी फ्रीक्वेंसी में आ रही है, या हम ये भी देख सकते हैं कि उसका एम क्या था, या हम ये भी कह सकते हैं कि हम क्यों आई है। ठीक है, वो क्यों के ऊपर भी हो सकती है। सो
क्वालिटी भी के ऊपर भी हो सकती है और क्वांटिटी के ऊपर भी. सो कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल हिस्टोरिकल कल्चरल इंसाइट ओवर द टाइम थ्रू द एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट. एंड डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस ऑफ कंटेंट एनालिसिस इज इनहेरिटली रिडक्टिव, particularly when dealing with the complex text. बिल्कुल ऐसा होता है कि हम ये भी कह सकते हैं कि रिडक्टिव अप्रोच है जब हम बात करते हैं एक कम्प्लेक्स टेक्स्ट की जिसके बारे में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, यानी एक वर्ड के ऊपर भी जो है वो कंटेंट एनालिसिस होता है कि इस न्यूज़ स्टोरी ने ये वर्ड, वी का वर्ड, अस का वर्ड, इसके ऊपर भी जो है वो कंटेंट एनालिसिस होता है. तो इट्स डिफ़िकल्ट टू एनालाइज दीज थिंग. सो टेंड टू ऑफन टू सिंपली कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स काउंट. ऐसा भी होता है कि समटाइम हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे होते हैं, जी फलां न्यूज़पेपर के अंदर ये न्यूज़ स्टोरी इतनी बार आई. सो इट्स नॉट अ क्लियर, ठीक है, क्लियर फिनोमेना नहीं है, हम जस्ट काउंटिंग कर रहे होते हैं समटाइम. सो ऑफन discarded that the content can produce the text as well as the state of thing after the text is produced. ठीक है, तो हम लोगों ने सिंपली जो वर्ड, जो चीज़ हमें सामने नज़र आ रही है, हम उसके बारे में ओपिनियन दे रहे होते हैं. सो इट्स नॉट अ फाइनल थिंग. हो सकता है कि आज उस न्यूज़पेपर ने उस तरह से, उस एंगल से दी, आज जब हमारा जो स्टडी कंप्लीट होगी मे बी वो न्यूज़पेपर किसी और एंगल से पब्लिश करना शुरू कर दे, या पहले वो किसी और एंगल से पब्लिश कर रहा हो, हमने आज देखा, हमने उसको आज समझा. सो इट्स नॉट अ इन टर्म्स ऑफ इन दीज ये तमाम चीज़ें हम देखें तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, बट हमने इसकी एडवांटेजेस भी देखी कि किस तरह से ये जो है वो हमारे पास सिंपलेस्ट वे में आ रहा होता है. अनअब्स्ट्रूसिव रिसर्च होती है जिसके अंदर जो है वो हमारे पास कॉस्ट इतनी मैटर नहीं करती, एक लेस कॉस्टली जो है वो ये प्रोसेस है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सर्वे रिसर्च. ठीक है, तो ये था हमारे पास कंटेंट एनालिसिस.